Hi guys, welcome back to my YouTube channel Fishaholic. Today I'm going to discuss about processing and preservation of fish from fish processing technology. This topic is very important for your ICR fisheries PG exam and other fisheries related exam. Before starting a video, it's a request. If you are new to this channel, please do subscribe to my channel and like, share and comment on my videos, and do follow me on Instagram too. So let's start the video with the introduction part. So fish, however, is more susceptible to the spoilage than certain other animals protein foods such as meat, eggs, and to prevent the spoilage of fish, some preservation is necessary. So fish जो है हमारी more susceptible है spoilage के than other animal protein foods. So जैसे कि eggs and meats. So preservation की हमारी definition क्या है? Preservation means keeping the fish after it has landed in a condition wholesome and fit for human consumption for a short period to few days or for a long period of over a few months. So preservation क्या है? हम जब fish को land होती है fish उस एक ऐसी कंडीशन में रखना जहाँ पे ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो ज़्यादातर फिट हो फॉर अ शॉर्ट पीरियड यानी कि फ्यू डेज के लिए या फिर लॉन्ग पीरियड फॉर अ ओवर अ मंथ्स. During the period of preservation, the fish is kept as fresh as possible within a minimum loss in flavor, taste, odor, form, nutritive value, weight, digestibility of fleshes. This preservation should cover the entire period from the time of capture of fish to its sale एट द रिटेल काउंटर. सो प्रिजर्वेशन कैसे होना चाहिए कि वहाँ पे मिनिमम लॉस हो हमारा फ्लेवर, टेस्ट, ओडोर में, फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट वैल्यू में, वेट में, और जो डाइजेस्टिबिलिटी है उसमें फ्लैश की वो हमारी मिनिमम रहे हमेशा. तो ऐसा प्रिजर्वेशन हमें करना चाहिए. एंड नेक्स्ट पार्ट इज हमारा जो एंटायर पीरियड है टाइम ऑफ कैप्चर ऑफ फिश टू इट्स सेल, इट शुड बी इन द कंडीशन कि उसमें मिनिमम लॉस हो. नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स क्या क्या है हमारे प्रिजर्वेशन के. सो मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन आर एज यू कैन सी प्रिजर्वेशन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. सो प्रिजर्वेशन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन हम कैसे करते हैं? बाय द चिलिंग प्रोसेस. सो दिस इज ऑब्टेन्ड बाय कवरिंग द फिश विद अ लेयर ऑफ आइस. आइस इज इफेक्टिव फॉर द शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन सच एज is needed from transport landed fish to nearby markets or to the canning factories. However, autolytic enzymes activity are checked by lowering the temperature. So हमारा चिलिंग कैसे हेल्प करता है कि आइस जो है वो वेरी इफेक्टिव है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर फिशेज एंड it is needed during the transportation from landing area to the nearby factories and मार्केट्स. एंड ये हमारा जो ऑटोलेटिक एंजाइम एक्टिविटीज़ है उसको भी हमारा चेक करता है यानी कि हमारा लोअर करता है बाय लोअरिंग द टेम्परेचर. नेक्स्ट हमारा मेथड है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, प्रिजर्वेशन फॉर लॉन्ग टाइम. सो when the preservation is required for long period of time, the fishes are passed through a cleaning, gutting and conservation and storage. So first we will see the cleaning and gutting. So cleaning and gutting, during cleaning the caught first are fish washed through cold water, cold clean water to remove bacteria, slime, blood, feces and muds etc. from the body surface of the fish. It is being done under the proper sanitary condition. Large fishes are gutted, that is all intestinal organ or viscera are removed and body cavity is washed. So cleaning and gutting हमारी क्या प्रोसेस है कि हमारा जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, गटिंग मतलब इंटरनल ऑर्गन्स और जो भी विस्ट्रा है उसमें उसको रिमूव करना. एंड क्लीनिंग हमारी कैसे होती है? जो भी बैक्टीरिया या स्लाइम वगैरह जो बॉडी पे प्रेजेंट होता है जब कॉट होती है फिश, यानी कि नेटिंग करके जब हम उसे पकड़ते हैं तब उसमें काफ़ी सारे ब्लड, बैक्टीरिया और स्लाइम होता है, तो उसे कोल्ड वाटर के थ्रू हमें क्लीन करना होता है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लीनिंग एंड गटिंग. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन एंड स्टोरेज. सो कंजर्वेशन is necessary to keep the dead fish in a fresh condition for quite long time. This is achieved by employing any one of the method like freezing, drying, salting and smoking and canning. These processes you will see in the next coming. एज फॉर कंजर्वेशन एंड स्टोरेज हमें इनमें से कुछ प्रोसेसेस हमें करनी होती हैं, जैसे कि फ्रीजिंग कर सकते हैं हम, ड्राइंग कर सकते हैं, सॉल्टिंग, कैनिंग, स्मोकिंग सॉरी. So let's see these processes, how we do these processes for conservation and storage of fish. So first we will see the freezing part. Freezing means removal of heat from the body. So this is a fish
this is a fish and it is having some heat or some energy in it. So removing that heat from its body is called as freezing. To check the enzymal activity, bacterial action and putrefaction, it prefer to store the fish under a lower temperature. So enzymatic activities और जब बैक्टीरिया के जो हमारी डिवाइडेशन है या फिर मल्टीप्लिकेशन है उसको हम स्टॉप करने के लिए हम इसे लोअर टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं फिशेस को. व्हेन फिश इज इंटेंडेड टू बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, क्विक फ्रीजिंग इज प्रेफर्ड विच इनहिबिट बैक्टीरियल एक्शन. क्विक फ्रीजिंग यानी कि जस्ट हमारा पास कर देंगे हम जो फिश है उसको, हमारा जो फ्रीजिंग एरिया है उससे जस्ट पास कराना क्विक फ्रीजिंग. IQF आप लोग जानते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग हमारी होती है. ये सब हमारे यूज़ करते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ स्टोरेज. ड्यूरिंग क्विक फ्रीजिंग एवरी पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट कम विद इन अ रेंज ऑफ 0.0 डिग्री टू -5 डिग्री सेल्सियस. प्रॉपरली फ्रोजन फिश एट -20 डिग्री सेल्सियस रिटेन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड न्यूट्रिटिव वैल्यूज फॉर अ ईयर और मोर एंड इज ऑलमोस्ट गुड एज फ्रेश. सो अगर हमारा जो फिश है उसे प्रॉपर्ली फ्रोज़न करेंगे हम 20 डिग्री सेल्सियस पे, -20 डिग्री सेल्सियस पे, सो ये क्या होंगी हमारी फिजिकली जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी दिनों तक रिटेन रहेंगी फॉर अ ईयर और मोर. और ये जो है हमारी फिशेस वो एज अ फ्रेश फिश रहेंगी हमारी अगर उन्हें हम -20 डिग्री पे फ्रीज़ करते हैं. नेक्स्ट इज देयर आर 3 वेज ऑफ इफेक्टिव क्विक फ्रीजिंग. डायरेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, डायरेक्ट इमर्शन ऑफ फिश इन अ रेफ्रिजरेंट मीडियम यानी कि हमारी IQF जो होती है. इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग भी होती है हमारी. इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रेफ्रिजरेंट थ्रू प्लेट्स, प्लेट फ्रीजिंग होती है. प्लेट्स होंगी उसमें हमारी जो फिशेस हैं वो रख दी जाएंगी और उन्हें एक चैम्बर में रख दिया जाएगा जहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो होता रहता है. फोर्स्ड कन्वेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट एयर डिटेक्टेड एट हीट ट्रांसफर सरफेस. ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं. इन जनरल डिफरेंट मेथड ऑफ फ्रीजिंग आर अडेप्टेड थ्रू अ शार्प फ्रीजर. सो एयर ब्लास्ट फ्रीजर होता है हमारा, कॉन्टैक्ट प्लेट फ्रीजर होता है, इमर्जन फ्रीजिंग, लिक्विड फ्रियॉन फ्रीजिंग, लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजिंग, फ्लूइडाइज्ड बेड फ्रीजिंग, क्रायोजेनिक फ्रीजिंग. सो एयर ब्लास्ट फ्रीजर क्या है हमारा कि वहाँ पे हमारी जो फिशेस हैं उन्हें एक चैम्बर में रखा जाएगा और एयर जो है हमारी नीचे से फ्लो करेगी या फिर ऊपर से फ्लो करेगी. सो इससे हमारी जो फिशेज हैं वो फ्रोज़न हो जाएंगी. कॉन्टैक्ट प्लेट फ्रीजिंग यानी कि जो हमारी प्लेट्स में हम रखेंगे कॉन्टैक्ट प्लेट फ्रीजिंग, वर्टिकल प्लेट फ्रीजिंग और हॉरिजॉन्टल प्लेट फ्रीजिंग होती है. ये 2 टाइप की होती हैं. सो वर्टिकल में हमारी जो फिशेज हैं उन्हें वर्टिकली हमारा अपसाइड डाउन उन्हें रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा. एंड प्लेट फ्रीज़र में उन्हें हॉरिजॉन्टल प्लेट फ्रीज़र में उन्हें क्या करेंगे कि प्लेट्स होंगी और उनमें उन्हें रखा जाएगा. इमर्जन फ्रीजिंग ऐसा जैसा कि आप जानते हैं IQF या फिर ये जो भी हमारी होती हैं इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग, उनमें हमारा इमर्शन फ्रीजिंग भी होता है. और लिक्विड फिरॉन फ्रीजिंग, फिरॉन इज़ यूज फॉर फ्रीजिंग द फिशेस. लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजिंग -96 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो नाइट्रोजन होता है उसमें हमारा फ्रीजिंग होगी. फ्लूइडाइज्ड बेड फ्रीजर एंड क्रायोजेनिक फ्रीजिंग. Among the various type of quick freezing plants installed in India, the carrier air blast type are widely used. Air type हमारे ज़्यादातर air blast freezer जो हैं वो हमारे ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं. The air blast freezer is in the form of tunnel and heat transfer is effected rapidly by a circulation of air. The temperature used ranges from 0 degree to -30 degree Celsius and air velocity 30 to 1050 meters per minute. ओके गाइज, सो एयर ब्लास्ट फ्रीजर में क्या है, ये हमारी एयर सर्कुलेशन होती रहेगी जिससे कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी हमारी. और टेम्परेचर हमारा 0 to -30 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा. एंड एयर वेलोसिटी हमारी 30 to 1050 मीटर्स पर मिनट रहेगी हमारी. नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रीज ड्राइंग. फ्रीज ड्राइंग हमारा सेकंड पॉइंट है. फ्रीज ड्राइंग, फ्रीजिंग कर सकते हैं हम. देन फ्रीज ड्राइंग क्या होता है? दिस इज अ मॉडिफाइड डीप फ्रीजिंग कंप्लीटली एलिमिनेटिंग ऑल द चांसेस ऑफ डीनेचुरेशन. द डीप फ्रोजन फिश एट -20 डिग्री सेल्सियस देन ड्राइड बाय डायरेक्ट सब्लिमेशन ऑफ आइस टू वाटर वेपर विद द एनी मेल्टिंग इनटू लिक्विड वाटर.
This achieved by exposing the frozen fish to 140 degrees Celsius in a vacuum chamber. The fish then packed or canned in the dried condition. The product is quite fresh looking appearance, flavor, color and quality. So freeze drying है, यहाँ पे हमने पता लगा लिया कैसे होता है कि जो ये एक डीप फ्रीजिंग होती है, -20 डिग्री पे हमने फ्रोजन कर दिया उसे, देन सडनली हमने सब्लिमेशन किया है. सब्लिमेशन प्रोसेस आप जानते हैं कि आइस से सीधे वाटर वेपर में वो चेंज हो गई. सो जो हमारी फिश है वो आइस फॉर्म से सीधा वाटर वेपर फॉर्म में चेंज हो गई. एंड दिस इज डन बाय एक्सपोजिंग द फ्रोजन फिश इन दी 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. एंड देन आफ्टर दिस द फिश इज कैंड और पैक्ड in this condition, dried condition, and the appearance is very fresh. And this is quite useful for those fishes which are fatty fishes. Okay guys, so fatty fishes के लिए हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्रीज ड्राइंग. नेक्स्ट देखते हैं हम सॉल्टिंग. सो सॉल्टिंग कैसे करते हैं, क्या होता है इसमें प्रोसेस, ये हमारी थर्ड प्रोसेस है. इसके थ्रू भी हम कंजर्वेशन और स्टोरेज कर सकते हैं फिशेस के. सॉल्टिंग इज अ प्रोसेस वेयर कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव विच penetrate the tissues, thus check the bacterial growth and inactivates the enzyme. Some of the factors involved in the salting of fish which play important role are purity of salt, quantify of salt use, method of salting and weather condition like temperature etc. सो सॉल्टिंग हमारा क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल प्रोसेस होती है. सोडियम क्लोराइड हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है उसे हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं जो कि पेनिट्रेट हो जाता है टिश्यूज़ में और हमारे जो एंजाइम या बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें इनएक्टिव कर देता है. ठीक है, बट समवॉट सॉल्टिंग जो है वो डिपेंड करती है काफ़ी सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ पे उसकी, जैसे कि प्योरिटी ऑफ सॉल्ट पे, क्वांटिफाई ऑफ सॉल्ट एंड मेथड ऑफ सॉल्टिंग एंड समहाउ on the weather conditions also. So during process the small fishes are directly salted without being cleaned. In the medium and large size fish the head and the viscera are removed and longitudinally cut are made with the help of knives in the fleshy area of the body. Then the fish is washed and filled with the salt for a uniform penetration through fleshes. Large fish like sharks are cut into a conventional size pieces. Generally sardine, mackerel, spearfish, catfishes, sharks and prawns are used for salting. So जो small fishes हैं उनमें डायरेक्ट हम salting कर सकते हैं, whereas जो बिगर फिश होती हैं यानी कि मीडियम साइज फिश और जो लार्ज फिश होती हैं जैसे शार्क्स एंड ऑल, दीज आर रिमूव्ड एंड जो हमारा विस्रा ऑर्गन होते हैं, हेड एंड विस्रा ऑर्गन होते हैं, वो सब हमारे रिमूव हो जाते हैं. लॉन्गिट्यूडनल कट उनमें लगा के उनके जो फ्लैशी एरियाज़ हैं उनमें हम सॉल्ट रखते हैं, जिस सॉल्ट इन्वॉल्व होता है जिसके थ्रू वो पेनिट्रेशन जो है सॉल्ट का वो अच्छे से हो पाए. ठीक है गाइस, सो लार्ज फिशेज लाइक शार्क कट कन्वेंशनली साइज्ड, और ये जो सॉल्टिंग है वो काफ़ी सारी फिशेज़ में होती है जैसे कि सार्डिन्स में, मैकरल में, शेयर फिशेज़ में एक्सेट्रा. नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं गाइस. सो in salting there are two type of salting, dry salting and wet salting. So we will see what are dry salting and wet salting. So in dry salting, in this process the fish is first rubbed in a salt and packed in a layer in the tubs and the cemented tanks. The salt is applied in between the layer of fishes in the proportion of 1:3 and 1:8 of to the fish. The portion of salt to fish varies with the fish. Since the oily fish require more salt, at the end of 10 to 24 hours the fishes are removed from the tub and washed in a salt brine and dried in a sun for 2 to 3 days. So ड्राई सॉल्टिंग में हमारा क्या यूज़ होता है, कैसे होता है कि जो हमारी फिशेज़ होती हैं उन पे हमारी सॉल्टिंग करके उन्हें टब में या फिर सीमेंटेड टैंक्स में उन्हें पैक किया जाता है. फिर उनकी जो लेयर्स होती हैं उन पे भी सॉल्ट अप्लाई किया जाता है इन अ रेशियो ऑफ 1:3 एंड 1:8 टू द फिश. एंड जो हमारा पोर्शन है सॉल्ट का वो वेरीज करता है फिश टू फिश, एज ऑयली फिश रिक्वायर मोर सॉल्ट. ओके गाइज, एंड एट द एंड ऑफ 10 to 24 hours of fishes are removed from the tubs and washed in a salt brine conditions, salt brine water, and dried for 2 to 3 days in a sun. Then next is wet salting. The cleaned fish are put in the previously prepared concentrated salt solution in the it is stirred daily till it is properly picked
With large sized fishes, longitudinal slits are made in the flesh to allow penetration of salt. After pickling for 7 to 10 days, the salty water that oozes out from the fish is allowed to drain off. This can be stored up to 3 to 4 months. So वेट सॉल्टिंग आप जानते हैं, जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन हमारा प्रिपेयर्ड रहेगा, उसमें हमारे जो क्लीन्ड फिशेज होंगे उन्हें हम डाल देंगे. उसके बाद उन्हें रोज़ हमारा स्टीयर करना है जब तक कि उनका जो वो सॉल्ट है वो प्रॉपरली उनमें पेनिट्रेट ना हो जाए. बड़ी बड़ी फिशेस में यानी जैसे कि शार्क है, उन्हें लॉन्गिट्यूडनली स्लाइड किया जाता है जिसके थ्रू पेनिट्रेशन ईजिली हो सके. सो ये हमारे 7 to 10 डेज़ लेते हैं. और जब पूरा जो सॉल्टिंग है वो हमारा पेनिट्रेट हो जाता है, सॉल्ट जो पेनिट्रेट हो जाता है फिश में, जब उसमें से पानी ऊज आउट होता है उसे हम ड्रेन ऑफ होने के लिए छोड़ देते हैं. एंड दिस कैन बी स्टोर्ड फॉर 3 to 4 months. नेक्स्ट इज स्मोकिंग. स्मोकिंग मेथड क्या होता है हमारा? इन दिस मेथड लैंडेड फिश इज क्लीन एंड ब्राइंड. इट इज़ देन एक्सपोज टू कोल्ड और हॉट स्मोक ट्रीटमेंट. सो इन कोल्ड स्मोकिंग द फर्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ 38 degree इज रेज फ्रॉम अ स्मोकलेस फायर. सो पहले हम स्मोक 38 डिग्री की स्मोक जो है उसे हम बिल्कुल स्मोकलेस फायर में कन्वर्ट कर देंगे. आफ्टर दिस हीटिंग कोल्ड स्मोक एट द टेम्परेचर बिलो 28 degree इज अलाउड टू सर्कुलेट पास द फिश. इन केस ऑफ हॉट स्मोकिंग फर्स्ट अ स्ट्रॉन्ग फायर प्रोड्यूस ऑफ टेम्परेचर अराउंड 31 degree Celsius. सो कोल्ड स्मोकिंग में क्या है कि 38 डिग्री तक रेस किया पहले टेम्परेचर को, फिर उसे स्मोकलेस फायर में कन्वर्ट कर दिया एंड देन उसमें हमारा फिशेस को जो है उसे जो स्मोक है उसे पेनिट्रेट करने के लिए हमारा 28 डिग्री तक रखा उसे टेम्परेचर को. एंड देन जो हमारा स्मोक है वो सर्कुलेट किया गया फिश के ऊपर. ठीक है. इन केस ऑफ हॉट स्मोकिंग उसे जो फायर है उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया गया एट द टेम्परेचर ऑफ 130 degree Celsius. This is followed by a smoking at the temperature of 40 degree Celsius. The smoke has to be wet and dense. Smoke जो है हमारी wet और dense होनी चाहिए. Good control are necessary over density, temperature, humidity, speed of circulation, pattern of circulation and time of contact with the fish of smoke. So हमारे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो माइंड में रखने चाहिए स्मोकिंग के टाइम पे, स्मोकिंग प्रिजर्वेशन के टाइम पे, कि हमारी जो डेंसिटी है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, स्पीड ऑफ सर्कुलेशन है स्मोक का, पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन है, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है स्मोक का विद अ फिश, ये सब हमारे कंट्रोल में होने चाहिए अच्छे से. द फिनॉल कंटेंट ऑफ अ स्मोक एक्ट एज अ एंटीसेप्टिक एंड इट ऑल्सो इम्पार्ट करेस्टिक फ्लेवर एंड कलर. फॉर मेकिंग फायर एंड स्मोक ओनली हार्ड वुड, कैनिफर वुड और सॉडस्ट आर यूज्ड. सो हमारी जो स्मोक की फिनॉल कंटेंट है वो हमारी एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होती है और ये हमारे जो स्मोक है वो फ्लेवर और कलर एक इम्पार्ट करते हैं हमारी फ़िश में. और हमेशा जो स्मोकिंग के लिए हमारी जो वुड होती है वो हार्ड वुड यूज़ होती है, सॉडस्ट एंड कैनिफर वुड. नेक्स्ट इज कैनिंग. कैनिंग is the method of preservation in which spoilage can be averted by killing microorganisms through heat. Only fish are most suitable for canning. Salmon, tuna, sardine, herring, lobster, shrimp are canned. The raw material should be processed properly since it contains most dangerous Clostridium botulinum which should be destroyed. There are some other heat resistant bacteria like Clostridium sporogenes which can be eliminated at a temperature of 5 to 6 times more than Clostridium botulinum. It needs temperature of 120 degree Celsius for 4 minutes or at 115 degree Celsius for 10 minutes to kill them in a large numbers. So canning हमारी क्या प्रोसेस है कि ये इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे फिशेज में उन्हें हम हीट के थ्रू कट आउट कर सकते हैं फ्रॉम द फिश एंड दिस विल प्रिवेंट द स्पॉइलेज. ऑयली फिश आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैनिंग like salmon, tuna, sardine, etc. The raw material should be processed properly since it contains most of the dangerous Clostridium botulinum is the most dangerous microorganism present in the fishes. There are some other heat resistant
बैक्टीरिया लाइक हीट रेजिस्टेंस मीन्स कि वो जो हीट लविंग रेजिस्टेंस मतलब वो हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं, मतलब अगर हम ज़्यादा हीटिंग भी करते हैं तो भी उनके मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं. सो इनके लिए हम टेम्परेचर जो है 5 to 6 टाइम्स मोर देन बॉटुलिनियम से ज़्यादा होता है इनका. सो इनके लिए 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 मिनट्स एंड 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स इनको किल करने के लिए यूज़ होता है. Canning is done by putting clean, dressed and cut fish into a saline solution. The can holding the fish and the saline are then double seamed under the vacuum. Thereafter, the sterilization of cans take place at the degree of 120 degrees Celsius for 90 minutes under a steam pressure. So, double steam मतलब हमारा ये होता है कि उसमें 5 लेयर जो हमारा कैन होता है वो 5 लेयर्ड होता है. ठीक है गाइस. डबल स्टीम हम उसे कहते हैं अंडर वैक्यूम कंडीशन की उसमें जो एयर हमारी ना हो सके, यानी नहीं तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हमारा इन्वायरमेंट मिल जाएगा ग्रो करने के लिए. देयर आफ्टर स्टेरिलाइजेशन ऑफ कैन इज डन एट दी 121 डिग्री सेल्सियस फॉर अ 90 मिनट. स्टेरिलाइजेशन इज फॉलोड बाय कूलिंग ऑफ द कैन अंडर रूम टेम्परेचर बाय रनिंग वाटर. सो नेक्स्ट देखते हैं हम. Next and the last process, drying. So drying involves dehydration, that is the removal of moisture content of fish so that the bacterial decomposition or enzymatic autolysis does not occur. When moisture content reduces up to 10%, the fish are not spoiled provided they are stored in a dried condition. So drying क्या होता है, हमारे डिहाइड्रेशन होता है, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ फिश होता है, जिससे कि जो हमारे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन और ऑटोलिसिस होती है, एंजाइमेटिक ऑटोलिसिस होती है, उससे हम चेक कर सकें. और मॉइस्चर कंटेंट जब हमारा 10% रिड्यूस हो जाता है तो फिशेज जो होती हैं वो स्पॉइलेज से हम उसे बचा सकते हैं. फिश ड्राइंग इज अचीव्ड आइदर नेचुरली और बाय आर्टिफिशियल मीन्स. इन नेचुरल ड्राइंग द फिश आफ्टर बीइंग कॉट आर वॉश्ड एंड ड्राइड इन अ सनशाइन. इन आर्टिफिशियल ड्राइंग द किल्ड फिशेज आर क्लीन, गटेड एंड हैव देयर हेड्स रिमूव्ड. दे आर देन cut lengthwise to remove the larger part of their spinal column, followed by washing and drying them mechanically. So here ends our topic. So thanks for watching guys, and do subscribe to my channel if you want to prepare for ICAR Fisheries PG exam and other fisheries related exam, and do follow me on Instagram too for more such notes and video related things.